Have you tried this exercise or not? Miscellaneous. Bolo beta. If someone tried this exercise. They told us to do last 3 questions in homework. Last 3 questions. Okay. So I did the first few questions. You have done first 4 questions. No, sir. First few questions, No, but sir, sir. I had some issues with how I write the answer, so I wanted you to discuss it. The first 4 Yes. question, right? Okay. I'll discuss that better. 1 second. I have given you first miscellaneous. Yes. Miscellaneous last 3 question first. Right? Question number 16, 15, 14. I think I've given you 13 also. The word problem based on the applications. Right? I hope. Yes, sir. Anyone who has joined late beta, attendance के लिए last call है बेटा. If someone has joined late, please tell me. Okay. Chapter 1. Sets miscellaneous exercise. See, in a survey, it was found that 21 people like product A, 26 like product B, and C 20 A is 26, sorry, B is 29. क्या बोल रहा हूँ मैं? In a survey, it was found that 21 people like product A, 26 like B, and 29 C. If 4 people like product A and B, 12 people like product C and A. Okay, this is a question of 3 sets, beta. Question number 16. We have this question of 3 sets. This is the question, and this is set A, let it be C, and this is C. So according to this, इस formula के according देखो बेटा, number of element of A, product A like 21. Number of element in set B, this is 26. And number of element C is 29. Now, if 4 people like product A and B, product A and B matlab, this is the common part between A and B. The whole thing this. The number of element in the intersection of A and B. This is 14. 14 है बेटा 4 है. एक सेकंड देखना प्रिंटिंग कर रहा मेरे में. Is this 14. product A and 14 है ना बेटा ये? Yes, sir. It is 14, right? And number of element in A and B, product C and A, means intersection of A and C is 12. And A, C and A हो गया. 14 people like product B and C. Now it is B intersection C is also 14. So all the 3 products, 8 liked all the 3 products. All the 3 products means
intersection of A, B, and C. This is 8. How many liked product C only? Question is product C only. Means this is the part we have to find out better. This is the part we have to find out. So how we'll find better? What is this actually if we have to find out this one? बोलो भाई. Sir, C minus A and B. ठीक है, आपने बोला C minus A and B यानी A intersection B, right? No, But sir, ये C वाला minus A minus B. बोलो बोलो बोलो. C minus A minus B. C minus A minus B. आप पूरे सेट की बात कर रहे हो कुछ और बोल रहे हो बेटा? No, sir, to find out only C. देखो ये इस पोर्शन को क्या नाम दोगे आप? ये वाला पोर्शन A intersection C. A intersection C. मैंने सिर्फ ये वाला पोर्शन बोला. सर A intersection C minus A intersection B intersection C. A intersection C minus A intersection B. B intersection C. This Yes means sir. आपका फॉर्मूला ये हो गया, राइट? Yes sir. तो मैं इसको यहाँ पे ब्रैकेट बना दूं, अब सही है? हाँ सर अब सही है. और C का डेटा कितना है? 29 माइनस A इंटरसेक्शन C का डेटा कितना है? 12 एंड इसका है 8. हाँ जी, अब बोलो. So according to you, your answer should be 25, right? सर only C बता. Only C है बेटा, only C. सर हम C में से पहले A intersection C minus कर देंगे. एक सेकंड, C में से A इंटरसेक्शन C माइनस करोगे, ये बच्चे ने भी बोला है. B intersection C minus करेंगे और तीनों का intersection ऐड कर देंगे. B इंटरसेक्शन C माइनस करेंगे और इसको ऐड कर देंगे. ठीक है, अब सही है? Yes अब sir. सही लिखा है मैंने? Yes sir. ठीक है. देखो क्या चीज एक्चुअली है ये, जब मैं इस पूरे पोर्शन को ले रहा हूं तो ये पूरा है. देखो यहां से यहां तक दिस इज नोन एज ए एंड सी, ए इंटरसेक्शन सी, एंड दिस होल पोर्शन इज नोन एज ए बी इंटरसेक्शन सी. सो अकॉर्डिंग टू दिस ए इंटरसेक्शन सी वैल्यू इज 12 प्लस बी इंटरसेक्शन सी वैल्यू इज 14 माइनस 8. 26 माइनस ये था 29. 26 माइनस 8 कितना हो बेटा? 29 माइनस 18 एंड आंसर इज 11. अब चेक करो 25 इज योर आंसर और 11 इज योर आंसर. 11. यानी ये करेक्ट है. अब आप ये समझो क्योंकि ये अभी मैंने रफली किया है, बिकॉज व्हेन वी हैव टू राइट प्रोडक्ट सी ओनली वी हैव टू राइट द फॉर्मूला इन प्रॉपर फॉर्म. नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी माइनस number of element in A intersection C plus number of element in B intersection C minus number of element in A intersection B intersection C. अब समझना बेटे क्या, देखो बेसिकली अगर मैं इन दोनों पार्ट, इसको बीच का कॉमन पार्ट नहीं देखता हूँ, सिर्फ ये देख नहीं रहा, अभी बस है तो सही. यहाँ पे जब मुझे C निकालना है तो C में से मुझे A और B का इंटरसेक्शन भी निकालना है और पार्ट भी निकालना है. ठीक है. अब ए बी इंटरसेक्शन सी और ए इंटरसेक्शन सी दोनों में ये कॉमन पार्ट आ रहा है बेटा, ये वाला पार्ट भी हटाना है. तो या तो आप इसको पूरा, क्योंकि ये तीनों पोर्शन अलग अलग निकालने हैं आपको, इसीलिए ये वाला पार्ट मैंने लिखा है यहाँ पे, क्योंकि ये दो जगह है, बी इंटरसेक्शन सी में भी है और ए इंटरसेक्शन सी में भी है. ठीक है. तो अब मेरा क्या था, मैंने आपको ये वाला तरीका क्यों बताया है, ताकि मैं आपको बता सकूं इस तरीके से लेते हैं तो थोड़ा सा कुछ बच्चे हो सकता है इजीली ना कर पाए. तो इसी सिचुएशन मैंने आपको वेन डायग्राम मेथड एक्सप्लेन किया था, राइट? तो आप देखना वेन डायग्राम मेथड से कैसे करते हैं.
और अगर आपको इसी से ही करना है तो मैं फिर से एक बार और इसको एक्सप्लेन करूंगा, बट फर्स्ट यू सी द वेन डायग्राम मेथड बेटा, मैं एक बार उसको बताता हूँ, फिर आपको लगेगा तो उस मेथड से आप ट्राई करना। this is B and this is C. Capital A set, capital B set, capital C set. Now I have written this portion as B. This is C, B, C, D, E, F, G. मैंने हर पोर्शन में एक अल्फाबेट लिख दिया। Now the value of this set A, this set A is 21. This is the value of set A. So set A के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है बेटा? A, B, C, D. अगर मैं इस सर्कल की बात करूं, so according to this circle we have A plus B plus C plus D equal to 21. This is my first equation. Now the value of set B is 26. इसकी वैल्यू 26 है B सेट की। तो B सेट में आपके पास B, C, G, F. It is B, C plus G plus F is equal to 26. This is my second equation. Now next is C beta. C में कितने एलिमेंट हैं? 29. So we have 29 element here. So the C set containing 4 alphabet C, D, E, F. C plus D plus E plus F, which is 29. Now these are A is 21, N of B is 26, N of C is 29. Then we have A intersection B, then A intersection C, and B intersection C. These data also we have, and this is 14, 12 and 14 respectively, and A intersection B intersection C is 8. अब मैं इनको सिर्फ अपने अल्फाबेट के उस फॉर्म में दूंगा। सो A intersection B means what बेटा in terms of alphabets बेटा? बोलिए। plus B plus C. B plus C equal to 14 beta. Right? Now A intersection C beta. A and C. C plus D. C plus D. C plus D, which is 12. Next is आ जाओ B and C. So this is B and this is C. तो ये आ गया हमारा C plus F. 40. Now what is the meaning of A intersection B intersection C? C. Only C, which is 8. Now if we put C equal to 8 in this implies what? F equal to what? 6 beta. Yes, sir. And if we put C equal to 8 here, what is the value of D? 4. 4. D की value आ गई, F की value आ गई. Similarly, if we put C equal to 8, what is the value of B here? 6. 6. Right? Now, C only means, question is what? Product C only. तो इसका क्या अल्फाबेट है बेटा C only का? बोलो भाई। Product C only को which alphabet is representing? E. E. This is E only. सुन के Right? बोलो. So it means E we have to find out. And this is when they are asking product C only, it means E alphabet we have to find out, and we have to use the alphabet of this C or circle only. This C circle only. Right? So in C circle C, D, E, F, it means this is C plus D plus E, F. We have C plus D plus E plus F equal to 29. This implies value of C we have 8 plus D value we have 4 plus E value we have, E तो निकालना, F value we have 6 plus E equal to 29. And if we solve E equal to 11, this way is the answer. तो ये मेरा product C only का data, right?
In same process, beta, I am asking product B only. बोलो भाई, प्रोडक्ट बी ओनली, ये निकालना भाई, कितना आंसर आएगा बताओ। प्रोडक्ट बी ओनली आई वांट। Sir, the alphabet will be G. हाँ, means we need to find out G only. Alphabet G only. Sir, Answer is 6. 6. Answer is 6. How you have got beta this answer? The G is here beta, and here B, C, F we required. So do we have B value? B की value है, C की value we have C value, and F value F है बेटा, तो F कहाँ से निकालोगे आप? F है बेटा, ऑलरेडी है, F भी है मेरे पास, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस, फ्रॉम दिस होल सर्कल यानी 26 minus value of B, minus value of B is 6 plus value of C, value of C is 8 plus value of F which is also 6. So 12 और 8 20, आंसर इज 6, करेक्ट। ठीक है बेटा, तो मेरे हिसाब से मेरा सजेशन है, इफ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज कमिंग, यूज दिस मेथड। इफ यू आर कंफर्टेबल विद दिस मेथड बेटा, तो आप इससे भी कर सकते हो, जिस भी मेथड से आपको इजी लगे बेटा। यहाँ पे क्या बेटा, कोई भी क्वेश्चन निकाल सकते हो आप, ये इक्वेशंस गिवन है सारी, इन सब को सॉल्व करके सारे अल्फाबेट निकाल लो। अब इसके बाद वो इसी क्वेश्चन से आपसे 10, 12, 13 क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ, ये सारे क्वेश्चन है हमारे। अगर आप देखो तो एफ को मैं क्या लैंग्वेज बोल सकता हूँ बेटा, बोलो। लाइक द लैंग्वेज फॉर ई इज प्रोडक्ट सी ओनली, लाइक। तो व्हाट आई कैन आस्क फॉर एफ, बोलो बेटा, कोई आप अपनी तरफ से लैंग्वेज बोलो, क्या पूछ सकते हैं। कोई बताएगा बेटा, व्हाट लैंग्वेज आई कैन यूज फॉर दिस बेटा। Both B and C only. बी एंड सी ओनली, हाँ ये बोल सकते हो आप, बी एंड सी ओनली, बी एंड सी ओनली। चलो और कोई लैंग्वेज बेटा। B or C. बी और सी बेटा, Yes, sir. और गलत हो जाएगा बेटा, वर्ड और का ध्यान रखो, और गलत हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन करते करते आपको लैंग्वेजेस आएंगी, वो हम देखते जाएंगे साथ के साथ। अब एक बार सब जने आप इसको वेन डायग्राम मेथड से क्वेश्चन नंबर 15 ट्राई करो बेटा, करो बेटा सब, यूजिंग वेन डायग्राम। आई एम आस्किंग यूजिंग वेन डायग्राम, ठीक है, फॉर योर कन्वीनियंस। in Venn diagram type of question beta, always draw this diagram beta, and they are talking about, in a survey 60 people, it was found that 25 people read newspaper, 25 people read newspaper H, 26 read newspaper T, second newspaper is T, and 26 newspaper I, so third one is I. So H, T and I. Okay. So first thing beta, same way में A, B, C, D, E, F, G. So we have given the name of each and every section, each and every sector. हमने जो डायग्राम बना इसके अंदर हर पार्ट को एक नाम दे दिया बेटा, ठीक है। So if they are saying that reading newspaper H, how many people we have? 25. So it means we have the data of this circle H is equal to 25. A plus B plus E plus F is equal to 25. This is my equation number 1. So first make all the equations using this data beta. जिस तरीके से मैंने आपको इसमें बताया,
ये सारा डेटा आप लिखो पहले ABCD की फॉर्म में। एक बार सब जने ट्राई करो से। Yes, beta. According to question, tell me the data of D plus E, beta. D plus E data is what? 8. कितना बेटा? 8. 8. 8. D plus E is 8. And B plus E is beta? 11, sir. 11. 11. And what is the data of E? 3. 3. 3. Now first part is what beta? The number of people who read at least one of the newspaper. At least one of the newspaper. Union. Union. Very good. At least one of the newspaper means कम से कम एक पढ़ता हो, तो तीनों भी पढ़ सकता वो। तो what is this meaning बेटा? We have to find out यहाँ पे है H union T union I. This we have to find out. And this means what? H union T union I के अंदर क्या आएगा बेटा? We have to find out A plus B plus C plus D plus E plus F plus G and plus बस यहीं तक है A B C D E F G. This we have to find out. Now they have used a word here, survey. So what is the value of this 60? 60 is the value of which notation बेटा? Universal. Universal. And this is given. हाँ, अगर ये given है बेटा survey, तो आप इसको ऐसे भी शो कर सकते हो. Now mentioned this is universal set and value of this is 60. ठीक है, आप सॉल्व करके बताओ. It means we require all data A B C D E F G. तो इसमें हमेशा ये थर्ड जो सबसे लास्ट जो होता है ये आपकी सबसे ज्यादा हेल्प करता है. Using this from here we can get the value of B which is 8 and same beta if we put here value of E, the data E value is 5 and from here the value of F is what? 6. 6 आ रहा है. ठीक है, अब यहाँ देखो B D F B D F E भी आपके पास है, तो आपके पास B D F और
डी निकल जाएगा आपका। यानी अब आप इसमें पुट करो तो आपका एफ ई डी की वैल्यू है, एफ ई और डी की वैल्यू है। तो यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ जी फ्रॉम 3। इस 3 से मुझे मिलेगा जी की वैल्यू। निकालो बेटा कितना आ रहा है ये जी की वैल्यू। वैल्यू ऑफ डी 52. 5 plus 6 11 and plus 3 14. So 26 minus 14 is 12. देखना बेटा जी की वैल्यू करेक्ट है, कंफर्म Yes, मी sir. बेटा, वैल्यू ऑफ जी इज Yes. करेक्ट। Okay, now we have B is there, D is also there, E is there, so we will get the value of C from here. तो C की वैल्यू क्या है बेटा, देखो अगेन D 5, C नहीं है, C तो निकाल रहे हैं, and B we have 5 और 8 13 plus 3 16. So 26 minus 16 is 10. Now the last one, from here we can get the value of A. So A is BEF. BEF 8 and 3 11 6 17. So 25 minus 17 is 8. Right? अब ये सारा डेटा देखो 1 2 3 4 5 6 7 इस सब में पुट करो, आपका आंसर आएगा। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर बोलो कितना आएगा बेटा? 52. 52। चेक करना बेटा, पीछे देखो यही आंसर है। आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट इज 52 बेटा, एक बार चेक करेगा कोई? क्यों बेटा? दिस इज अ सर्वे बेटा, सर्वे है ये। सर्वे में मुझसे क्वेश्चन पूछा, मैं भी सर्वे का पार्ट 2 60। उन्होंने पूछा विच न्यूज पेपर यू आर रीडिंग, राइट? तो मैंने कहा कि मैं तो कोई नहीं पढ़ता, तो ना मैं एच में हूँ, ना मैं टी में हूँ, ना मैं आई में हूँ। तो इसका मतलब कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कुछ नहीं पढ़ते होंगे, सर्वे में कुछ लोग पार्टिसिपेट ही नहीं करना चाहते होंगे। हाँ बेटा बोलो। 52 will be the answer. 52 is the answer. Okay, correct. Now, what is second part, beta? Second part is the number of people who read exactly one newspaper. Yes, beta. Anyone? What is the notation for exactly one newspaper? Sir, A plus C A plus plus C plus D. A plus C plus G. समझ रहे हो बेटा? एग्जैक्टली का मतलब है दिस। यहाँ ये जो A है वो ओनली H में लाई कर रहा है। अगर मैं B को ले लेता हूं तो B H में भी है और T में भी है। इसका मतलब ये दो न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, ठीक है? तो आपको निकालना है एग्जैक्टली वन, A प्लस C प्लस G। तो दिस इज आंसर ऑफ दिस इज व्हाट? A की वैल्यू 8, C की वैल्यू 10 प्लस G की वैल्यू 12, तो 20 30 आंसर हो गया। चलो ये तो दो एनसीईआरटी के पार्ट हो गए, ठीक है? अब मैं आपसे पूछ रहा हूं नंबर ऑफ रीडर्स हु रीड एग्जैक्टली 2 न्यूज़पेपर। एग्जैक्टली 2 न्यूज़पेपर, बताओ भाई क्या निकालना है इसका मतलब? दिस इज एक्स्ट्रा वन। 90. C plus F plus B D. plus F plus D. E प्लस F प्लस D. D, राइट? तो बताओ मुझे क्या है? B की वैल्यू इज 8, F की वैल्यू इज 6 एंड D वैल्यू इज, D कहाँ है भाई? 5। 8 14 प्लस 5 इज 9। दिस इज द आंसर, 90. ठीक है? चलो अब मैं बोल रहा हूँ फाइंड द नंबर ऑफ रीडर्स हु रीड H एंड T बट नॉट I। बताओ भाई। So B. H, Yes, sir. मैंने बोला H एंड T बट नॉट I। तो कौन सा पार्ट है बेटा? दिस B belongs to, this B belongs to H and T but not belongs to I, है या नहीं है बेटा? तो इसका मतलब B is what actually? सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ बेटा? बताओ भाई इसका क्या आंसर है? देखो So B. हमें सिर्फ B की वैल्यू निकालनी है बेटा। अकॉर्डिंग टू दिस आई एम आस्किंग number of reader who read H and T but not I। तो H और T पढ़ते हो but not I।
तो ओनली बी आ रहा बेटा, ये रहा बी का आंसर कितना था हमारा, बी की वैल्यू हमने निकाली होगी कहीं पे, कहाँ निकाली है, ये रहा। 8. ठीक है बेटा, तो क्या करते हैं देखो एग्जाम में जब आता है, क्योंकि हमें पता है बच्चा 99% बच्चा इससे करेगा, ठीक है, और हम लोग यही मान के चलते हैं कि बच्चे को ये वाला मेथड भी आता होगा, तो हम खाली ये 2 पार्ट नहीं पूछेंगे, 2 पार्ट, ये 5 मार्क का क्वेश्चन आएगा, कम से कम हम इसमें 3 या 4 पार्ट पूछेंगे। 1 मार्क, क्योंकि 5 मार्क का है तो 5 मार्क डिस्ट्रीब्यूट भी करने हैं, तो 1 मार्क इस कैलकुलेशन पे जाएगा आपको, ये जो वैल्यूज हम निकाल रहे हैं इसके जाएंगे, एंड फॉर ईच पार्ट 1 मार्क फॉर ईच पार्ट, so 4 parts we can ask the question and 1 mark for the explanation in terms of data of question. क्लियर है बेटा ये, तो कम से कम 4 पार्ट इसमें जरूर पूछेंगे वो, और उसमें आपको यही गैस करना है कि क्या निकालना है। तो बेस्ट क्या है बेटा, आप जब इसको सॉल्व करोगे तो पहले ये इंडिविजुअल जरूर निकाल लो इन 2 वालों से, तो मैक्सिमम टाइम पे क्या होता है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सिर्फ इनसे ही हो जाते हैं सॉल्व, और जब यूनियन पूछ रहे हैं तब आपको जरूर सारा डेटा चाहिए, और कई बार होता है हमें, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया, हमने यहाँ पे सबकी वैल्यू नहीं निकाली, ए बी सी डी की, जो पूछा हमने तुरंत उसकी वैल्यू निकाल के उससे क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, तो हमें टाइम वेस्ट नहीं करना उसमें, स्मार्टली क्वेश्चन को रिएक्ट करना है आपको, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर, दिस मेथड इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट बेटा, ठीक है ना, आपको लगेगा अच्छा, थोड़ा मैं सजेशन दूंगा, इफ यू हैव एनी रेफरेंस बुक, वहां पे आपको यू विल फाइंड many question for practice, so try those question using this method beta, try those question using this method if possible beta, right? Okay, सर हाँ जी बेटा बोलो। सर दूसरे वाले मेथड की मार्किंग स्कीम क्या होगी? बेटा सेम मार्किंग यही है उसकी भी, आप जिस भी मेथड से करो, वहां पे इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया दैट यू आर राइटिंग द फॉर्मूला दिस, so if you are writing this you will get, because this is only one part, so this must be in 3 marker question beta, so around 1 or 1.5 mark you will get here beta, because here this is the important how you make this formula, ठीक है। उसका भी तरीका अगर बच्चा को इस तरीके से करना चाहता है तो आप इस तरीके से फॉर्म करके इस फॉर्मूले को बस यहाँ लिख लो, यहीं पे लिख लो ABCD, तो आपको पता है D is a part of what, A intersection C, and you have written here what you have written here, कहाँ गया वो हमारा पार्ट जब हमने सॉल्व किया था, ये रहा दिस वन, ठीक है ना। सो दिस 8 4 6 हमारे पास ये वैल्यूज थी देखो, D C and F, so D is representing A intersection C, right, and C is F is representing B intersection C, and C is representing A intersection B intersection C, तो आप इस तरीके से भी ले सकते हो फॉर्मूला, ठीक है बेटा, तो आपको जिस तरीके से सही लगता है आप उस तरीके से कर सकते हो, मेरा सजेशन है आप इस तरीके से करो, आपको इजी भी रहेगा, और इसमें जितने ट्विस्टेड होते हैं, जितने ज्यादा ट्विस्ट होते हैं इन क्वेश्चनों में, आप इससे पिक करने में प्रॉब्लम होती है, तभी बोल रहा हूँ मैं। और जितने भी टीचर हैं वो क्या करते हैं अपने माइंड में आपको समझाने के लिए, व्हाट दे विल डू, दे आर राइटिंग ए स्मॉल अल्फाबेट ABCDEF इन देयर ब्रेन, अपने माइंड में की वो रख के, और उससे फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं और फिर सॉल्व कर रहे हैं। अगर आप ये फोर्स कर रहे हो कि सर इस वाले मेथड से करके बताओ, तो वो अपने माइंड में ये सॉल्व कर रहा है या रफली आपके सामने सॉल्व करेगा, अदरवाइज दिस इज द बेस्ट वे, बिकॉज दिस विल हेल्प यू to solve many questions of competitions also. After 12th you will appear for the some entrance test, there you will get the question based on this topic, and the topic this topic question will be easy if you use Venn diagram method, ठीक है। Is this okay beta? Yes. चलो next beta, I think question number 13 and 14 all of you have done beta, question number 13 and 14. If you want, then I'll discuss these two questions also, because this is based on 2 sets only. Should I discuss 13 and 14 beta, or you solve yourself? Sir, solved. Solved. Okay. Anyone beta who want to get the solution or discuss the question number 13 and 14, because this exercise is very very important beta, miscellaneous exercise for examination point of view.
Sir, in question number 13, we have to find out the number of T intersection C complement. Complement, right? Find how many students were taking neither tea nor coffee. So neither nor का combination मैंने आपको बताया था, A intersection C, sorry, एक second, A complement intersection C B complement, and the meaning of this is A union B whole complement, right? Neither nor representation is this, neither A nor B, और दूसरी लैंग्वेज क्या है, नॉट ए एंड नॉट बी. नीदर ए नॉर बी का मतलब क्या है बेटा, नॉट ए एंड नॉट बी. So A complement is representing not A, B complement is representing not B, and this intersection means and. Is this clear beta? So T, Yes, neither T nor B nor coffee का मतलब है T and C if you are taking, so it means T complement intersection C complement. It means we have to write T union C complement, and we have written this is what this is known as De Morgan's law. De De Morgan's, Morgan. right? De Morgan's law, correct. Okay, so 13 done beta. 14 I at least you try. अगर आप आपने नहीं किया हो बेटा तो आप एक बार try जरूर करना 13 14 को. Then we will discuss. Now taking question number 1. Somebody asked me how to solve first 4 questions. So first I am taking question number 1. Those are Question not number, first 4 questions, sir. I had doubt about sixth question. question number 6 beta. Okay. Yes, sir. Not first 4. Sir, I had done those ones. Acha, okay, you have done. Question number 6. Assume that PA equal to PB. Show that A equal to B. Show that A equal to B. This is the question beta. Now first tell me what is the meaning of P of A and P of B beta. Power set. Very good. Power set. So this means power set. तो अगर मैं यहाँ पे देखो सॉल्यूशन को देखना बेटा, ये थोड़ा सा क्योंकि बाय डेफिनेशन वाला क्वेश्चन है ये, बिकॉज दे हैव नॉट गिवन अस द डेटा ऑफ ए एंड बी. If they will give us data, it is a very simple question. But now we have to apply the definition. What is the meaning of power set, right? So first thing, let X belongs to set A. X is the element which belongs to set A. It means this implies curly bracket X will belongs to power set or not. ये बताओ बेटा मुझे पहले. Is this clear or not? देखो कोई A set है, देखो A set है 1 2, right? अब मैं इसके पावर सेट लिखता हूँ which is 5 1 curly bracket 1 curly bracket 2 curly bracket 1 2, and we are writing the all these subset in the curly bracket, main curly bracket, or you can say big curly bracket, because जैसे ही मैंने ये bracket लिखा, now this become the power set. Without this curly bracket all are known as subsets, right? So मैंने बोला this one belongs to A, तो उसके बाद बोल रहा हूँ curly bracket 1 belongs to power set A, because मैंने बोला element is always belongs to a set, element is belongs to a set A. So in this situation 1 is the element belongs to set A. Here 1 and 2 are elements. Now in this big curly bracket, the curly bracket 1 is the element of power set, right? So is this clear or not beta what I am writing here? Let X belongs to set A. This implies curly bracket belongs to this one beta, power set. बेटा बोलो ये क्लियर है नहीं क्लियर है ये वाला स्टेप, Yes, sir. Yes, sir. right? Now the next step is what? As this power set A is equal to power set B, this is given, so I can write this curly bracket will also belongs to power set B. बोलो ठीक है बेटा, ये बताओ ये क्लियर है, Sir. right? Now after this implies element X belongs to set B. अब मुझे बताओ if set X belongs to, मतलब element X belongs to set A implies that element also belongs to set B. This is the definition of what beta? Equal sets.
No beta, no. No. Subset beta. A is a subset of B. If all the element of A belongs to B, it means A is a subset of B. वो अलग चीज है बेटा कि सारे एलिमेंट और दोनों से ये सब सारे एलिमेंट सेम है. यहाँ पे हो सकता है 3 एलिमेंट है और यहाँ 4 एलिमेंट है, बट लेकिन जितने भी तीनों एलिमेंट है वो बी में भी है, इसका मतलब सबसेट है. तो अभी जो हमने काम किया उसके अकॉर्डिंगली वो सबसेट को डिफाइन करता है. अब हम उल्टा चलेंगे अगेन. अब मैं लेता हूं लेट y belongs to set B. So I can write subset y belongs to power set B, and this curly bracket y belongs to power set A as PA is equal to PB, and this implies y belongs to A. So if y belongs to B implies y belongs to A, this implies B is a subset of A. So this is the first and this the second. Now using from 1 and 2, from 1 and 2, this implies A equal to B. Because A is a subset of B and B is a subset of A, it means A and B are equal set. तभी हो सकता है बेटा. अगर खाली A is a subset of B है, it doesn't mean that A is equal to B. ठीक है. तो जब भी मुझे equal proof करना है तो we have to prove one set is a subset of another one and the second one is a subset of first one. So this way we have to present this question. अब मुझे बताओ पहले ये क्लियर है नहीं क्लियर है बेटा? बिकॉज ये डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे वाले क्वेश्चन. अगेन आई एम टेलिंग एज पर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एंड एज पर कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज ये जेई में भी है क्वेश्चन ऐसे. बोलो बेटा, इज दिस क्लियर और नॉट? No one is replying. Explain it again. Sorry beta, Okay. can अच्छा repeat from. Yes. Okay, see what I've taken beta. First I think we should be clear to our mind. If we have to prove a set equal to B, so it means first we have to prove A is a subset of B and B is a subset of A. तो मुझे इस कंक्लूजन तक पहुंचना है. If A is a subset of B and B is a subset of A, इसका ऑटोमेटिक मीनिंग है A is equal to B बेटा. फर्स्ट थिंग. तो मैंने क्या किया बेटा, बिकॉज दे हैव गिवन यू द पावर सेट्स. So what I have taken an element, general element, that this element belongs to set A. तो जैसे ही मैं इसको कर्ली ब्रैकेट में लिख दूंगा तो this will belongs to power set A. ठीक है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था. तो ये बताओ फर्स्ट टू स्टेप इज क्लियर और नॉट, ये बताओ पहले. बोलो बेटा. Yes. ठीक है. Yes, sir. One element belongs to A, then its subset, if we write in a set, that set belongs to a power set of this given set beta. ठीक है. अब using this concept that power set A equal to power set B, so what I have written, this set X belongs to power set B also, using this concept, this given identity beta, right? So अगर मैंने ये लिया तो अब मैंने इसमें से curly bracket हटा दिया, तो now it become element X which belongs to set B. So if X belongs to A implies X belongs to B. This is the mathematical definition of subset. अगर आप देखोगे तो मैंने आपको सबसेट की जब डेफिनेशन लिखाई होगी तो आप देखो element A, X belongs to A implying X belongs to B, it means A is a subset of B. अब मैं रिवर्स में चला नेक्स्ट वाले में. I have taken another element Y which belongs to set B. Again set Y belongs to power set B, then power set B is equal to power set A. So then this set Y belongs to power set A. So from here we are reaching at Y belongs to a set A. Again a definition, if Y belongs to B implies Y belongs to A. This is the definition of subset. So B is a subset of A. Now since A is a subset of B and B is a subset of A, so from 1 and 2 we reach to this final conclusion that A and B are equal.
देखो ना बेटा, अगर मैंने ये a इक्वल टू 1 2 लिया और b इक्वल टू मैं ले रहा हूँ 2 1, राइट, मैं b इक्वल टू 2 1, so clearly here 1 belongs to a and 1 also belongs to b, so this is clearly visible a is a subset of b. अगर मैं एक टॉपिक के हिसाब से देखूं या दोनों को देख लो, 2 belongs to a and 2 belongs to b also. और इसका उल्टा भी हो रहा है बेटा, क्योंकि यहाँ तो हम डायरेक्ट देख रहे हैं कि दोनों सेम एलिमेंट है. अगर मैं यहाँ पे रिवर्स देखूं तो 2 बिलोंग्स टू बी इंप्लाइंग 2 आल्सो बिलोंग्स टू ए, तो इस केस में ए इज ए सबसेट ऑफ बी भी है एंड बी इज ए सबसेट ऑफ ए भी है. सो इट मींस दिस इज बोथ आर इक्वल. ये तभी पॉसिबल है जब ये दोनों सेट इक्वल होंगे, देन ओनली पॉसिबल ए इज ए सबसेट ऑफ बी एंड बी इज ए सबसेट ऑफ ए. तो इस चीज को ध्यान में रख के मैंने इसे प्रूव किया. ठीक है बेटा, Yes, इसका sir. डाउट है बेटा. ये क्वेश्चन नंबर 6. Yes, sir. बेटा व्हाट इज योर नेम? Shashwat. शाश्वत. इज दिस क्लियर बेटा? हाउ यू हैव Yes, टू sir. प्रेजेंट? बेटा ये इंपॉर्टेंट sir. क्वेश्चन है, मार्क कर लो. और सिमिलर अप्रोच से देखो, आपको मार्क करो सिमिलर अप्रोच से कौन कौन से क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं. क्वेश्चन नंबर 5 करो बेटा. 5 जिसने नहीं ट्राई किया, अब इसको देखते हुए वो ट्राई करेगा इसे. क्वेश्चन नंबर 5 एंड देन क्वेश्चन नंबर 8 बेटा. 8 9 दोनों लिखो, 8 और 9 और 11. क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 8 9 11. बस ये जो 6 5 8 9 11 ये सारे इंपॉर्टेंट भी है, और इसमें बाय डेफिनेशन या प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट सेट के हेल्प से आपको सॉल्व करना है. बोलो भाई. मुझे लगा था मैंने आपको लास्ट क्लास में ये मिसलेनियस ट्राई करने के लिए दिया था, पर चलो कोई बात नहीं. आज मैं आपको अब ये दे रहा हूँ कि क्वेश्चन नंबर, ये मिसलेनियस एक्सरसाइज आप एक बार कंप्लीट योरसेल्फ यू हैव टू ट्राई बेटा दिस मिसलेनियस एक्सरसाइज. ठीक है, एक बार, क्योंकि एक अप्रोच मैंने आपको ये दी, आप इसको इसकी अप्रोच से ही 5 8 9 11 यानी इसको बोलते हैं बेटा बाय डेफिनेशन. तो आप इस क्वेश्चन को बाय डेफिनेशन कर सकते हो, बाय प्रॉपर्टी कर सकते हो. इफ यू फील यू हैव अ प्रॉपर्टी रिलेटेड टू दिस कॉन्सेप्ट. पावर सेट से रिलेटेड हमारे पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, इट मींस we have to solve by using definition. But like in question number 8 and 9 we have properties of union, properties of intersection, properties of complement set. These properties we have better. तो आप या तो बाय डेफिनेशन करो 8 9 को और 11 को, या बाय प्रॉपर्टी भी कर सकते हो आप. ठीक है, तो आप कहते हो तो मैं आपको एक बाय प्रॉपर्टी भी करके बताता हूँ. क्वेश्चन नंबर 8, सपोज आई टेक क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 और इसमें दे रखा है शो दैट फॉर एनी सेट ए एंड बी, फर्स्ट पार्ट इज ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी माइनस नहीं सॉरी यूनियन ए माइनस बी. ठीक है बेटा, मैंने ये लिखा बेटा. अब यहाँ पे एक चीज देखो बेटा, व्हाट इज द नेक्स्ट नोटेशन फॉर दिस बेटा? यस, समबडी इज हैविंग डाउट बेटा? सर ये तो हम सीधा सीधा वेन डायग्राम से कर देना ना. नहीं बेटा, वेन डायग्राम से जब आपको बोला जाए वेन डायग्राम से, वेन डायग्राम इज द लास्ट ऑप्शन. वेन डायग्राम से पर आप प्रेजेंट कैसे करोगे? अगर मान लिया मैंने 2 नंबर का दिया तो आप तो खाली डायग्राम बना दोगे, और डायग्राम कभी भी डायरेक्ट 2 नंबर का नहीं हो सकता बेटा. सर हम पहले सर ए इंटरसेक्शन बी का बना समझने लें. के लिए बना सकते हो बेटा, बिल्कुल करेक्ट है. आप ऐसे कर सकते हो, सी दिस एंड दिस, एंड ये हो गया इंटरसेक्शन, मैंने इसको ऐसे बना दिया. ठीक है, एंड वर्टिकल लाइंस आई एम राइटिंग दिस वन. तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी, तो ये किस सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है? सॉरी मैं गलत लिख गया, लेट इट बी ए एंड दिस बी बी नाउ. सो ए इंटरसेक्शन बी इज दिस वन एंड ए माइनस बी इज दिस वन. तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं? सेट ए. ये क्लियर है? बट बेटा यहाँ पे क्या है, शो करना है मुझे, तो खाली डायग्राम आप अपनी हेल्प के लिए ले सकते हो किसी पर्पज के लिए.
वहां पे क्या होगा, टीचर ने आपने ये मान लीजिए डायग्राम बना दिया और आप लिखोगे हेंस प्रूव्ड. नो, दिस डायग्राम इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस डेटा ओनली. तो अगर आपने इसके आगे कुछ नहीं किया तो हो सकता है मैं आपको आधा नंबर दे दूं. सीबीएसई की तरफ से गाइडलाइंस नहीं है कि मैं आपको इसके नंबर दूं, बट सिर्फ इसके लिए कि मेरे बच्चे को या मेरे स्टूडेंट को एटलीस्ट इसको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करना तो आता है. मैं इस क्वेश्चन को 1 नंबर में दे सकता हूं. कैसे? ड्रॉ द वेन डायग्राम ऑफ दिस नोटेशन या दिस इक्वेशन या दिस एक्सप्रेशन. अब ये क्वेश्चन डिफरेंट हो गया. ड्रॉ द वेन डायग्राम फॉर दिस एक्सप्रेशन. This becomes the 1 mark question. But when it is to show that, it is to prove that, it means it is at least of 2 mark बेटा. कोई एक लाइन का कोई वैसे डायरेक्ट लिखने वाला हो तो बात अलग है. तो अब देखो बेटा, I can write A minus B as A intersection B complement. बताओ बेटा इसका क्या मतलब मैं लिख सकता हूँ ये A minus B. This value is A minus B. A but not B. A but not B. बोलो भाई, A minus B को we can write this or not? Yes, sir. ठीक है. एंड यहाँ पे हमने ये लिख दिया एंड दिस इज यूनियन एंड वी हैव A इंटरसेक्शन B. राइट. चलो अब नॉर्मल अलजेब्रा पे आते हैं. वी हैव A इंटरसेक्शन B मींस A into B. यूनियन का मतलब प्लस साइन और यहाँ हो गया मेरा A इंटरसेक्शन का मतलब मल्टीप्लाई. वी कैन राइट A B डैश. दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है बेटा? बोलो. A कॉमन आ रहा है Yes, sir. बेटा. ज्यादा नहीं, 1 मिनट लूंगा बस, थोड़ा सा दे दो बस, ये खत्म कर क्वेश्चन. A कॉमन लिया, देन वी कैन राइट B प्लस B डैश. क्लियर? अब देखो यहाँ पे, अब इसको वापस सेट में लेके आओगे आप. तो फर्स्ट थिंग आफ्टर दिस आई हैव टू राइट. अब इसको सेट में लेके आओ. इस ब्रैकेट और A के बीच में ऑब्वियस मीनिंग है मल्टीप्लाई. तो आई विल राइट A इंटरसेक्शन देन ब्रैकेट प्लस का मतलब यूनियन है बेटा. B plus B B union B complement. Now what is the value of B union B dash? याद है प्रॉपर्टी में लिखा था A union A complement. तो B union B complement, it is universal set, right? And what is the intersection of A and universal set? A. A. हो गया. तो what I have done, I've started from RHS and reached to LHS. तो हम हमेशा सॉल्व वहां से करते हैं जहां पे मुझे सिंप्लीफिकेशन का स्कोप है. अगर मैं ये करूंगा बेटा, अगर मैं LHS से जाऊंगा तो मुझे लिखना पड़ेगा पहले A is equal to A intersection universal set. Then I have to write. तो ये चीज मेरे दिमाग में बहुत कम क्लिक करेगी कि मुझे किसको लेके चलना है. यानी मुझे अपनी तरफ से डालना ये डेटा. और यहाँ क्या है, मैं सिर्फ सिंप्लीफाई करता जा रहा हूँ अलजेब्रा और उससे मैं अपने आप पहुंच गया. तो दिस यू हैव टू डिसाइड वेदर यू हैव टू प्रूव इट फ्रॉम द RHS टू LHS और फ्रॉम LHS टू RHS. तो मेरा सजेशन है जहां सिंप्लीफिकेशन का स्कोप है वहां से दूसरी साइड में पहुंचो आप. ठीक है बेटा. तो इसको बोलते हैं यूजिंग द प्रॉपर्टीज. और बाय डेफिनेशन भी कर सकते हो. आपको मालूम है यूनियन का क्या मतलब होता है, ठीक है ना, उसको यूज कर सकते हो. तो इस टाइप के क्वेश्चन में मेरा सजेशन है आप प्रॉपर्टी यूज करो, फटाफट हो जाता है. डेफिनेशन में तो जहां पे जिसकी प्रॉपर्टीज नहीं होती उसको बाय डेफिनेशन करो आप. ठीक है. तो आज आप ये ट्राई करोगे बेटा. ऑल दीज क्वेश्चंस यू हैव टू ट्राई ऑफ द मिसलेनियस, अदरवाइज ये चैप्टर कंप्लीट है. इन द नेक्स्ट क्लास आई डिस्कस द डाउट ऑफ योर मिसलेनियस एक्सरसाइज. डाउट ऑफ मिसलेनियस एक्सरसाइज. So can we do question number 5th also? सारे करने बेटा. आपको 1 2 हमें पूरी एक्सरसाइज करनी है. अब आप देखो आपके कौन कौन से रह गए हैं. You have to try all these questions. Sir, I tried question number 5 right now. Sir, I don't know the language to write. So can we do it right now? Question number 5 बेटा. बेटा टाइम Yes, हो sir. गया बेटा. आपकी भी क्लास होगी, मेरी भी दूसरी क्लास है. So we'll do in the next class, right? Okay, sir. ठीक है. Next class I'll do this thing if you want. Otherwise you can ask in the next class all these doubts. 1 second बेटा, please wait. Please wait बेटा. सब चले गए बेटा. अटेंडेंस रहा करो बेटा. Okay, now you can leave बेटा. Yes, sir. Welcome.